start with the data communication. This is our reference book. I have divided a reference book according to chapters, right ना? तो जैसे हम लोग का गूगल क्लासरूम होगा, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने किए थे, राइट? तो गूगल क्लासरूम क्रिएट करने के बाद वन बाय वन जैसे अपना हम लोग का यूनिट है, वैसे मैं आपको चैप्टर वाइज आपको अपलोड कर दूँ। तो आपको कहाँ पे रेफरेंस बुक सर्च करने की जरूरत है, ठीक है? So this is our reference book. Okay, first page of reference book. Fifth edition, data communication and the network are frozen. Topic number 1, that is the data communication. Okay. So as we know, when once you establish the communication, right? No? Once you establish the communication, right? Some information is exchanged continuously from sender to receiver, receiver to sender. Okay. So exactly what type of informations, right now, or when we call the information is a data. Okay. हम लोग एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डेटा कैसे बोलें, या फिर इंफॉर्मेशन को ही डेटा बोलना, या फिर डेटा को ही इंफॉर्मेशन बोल रहे, राइट ना? इट इज क्वाइट अ कंफ्यूजिंग पार्ट, राइट? तो डेफिनेशन make it clear what is information, what is the data. Okay, the word data refer to, see the definition, the word data the word data refer to information present in whatever form is agreed upon by the parties creating and using the data. Okay, it means data, it means जो information हम लोग के communication में जो information valuable है, जो information valuable है, right ना? that information को हम लोग क्या बोलेंगे? data, right? In terms of computer network, right ना? तो communication में data exchange करना, right ना? अगर देखो हम लोग का लेक्चर्स हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं, राइट ना? उस लेक्चर्स में हम लोग राइट during that lectures we basically discuss many things. Okay, on that many things लेक्चर का जो पार्ट होता है, नॉलेजेबल जो पार्ट होता है, इंफॉर्मेशन का जो पार्ट होता है, डेटा का जो पार्ट होता है, दैट इज द रिलेटेड टू द सिलेबस, राइट? बाकी थैंक यू, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है, ये वो, राइट ना? दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशंस, बट इट इज नॉट वैल्यूएबल, राइट? तो नॉलेज कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, नॉलेज कहाँ पे गिव एंड टेक हो रहा है, राइट ना? दैट पार्ट इज कॉल्ड इट. तो व्हेन यू यूज that data, right enough, or you can say you exchange that data during the communication, that communication is called a data communication. See the definition, technical definition of a data communication. Data communications are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium, right? Such as wire cable, such as wire cable. It means जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, there are two transmission medium. The transmission basically divided into two basic parts.
guided and unguided. The guided and unguided is a technical word. हम लोग के नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे वायर एंड वायरलेस. ओके, वायर्ड एंड वायरलेस. तो वायर्ड जो फिजिकली वायर्स हम लोग को दिखती है, that is the wired. Okay, when you establish the communication, right, establish the network, set the network without visible wires, that is called wireless. Okay, तो ट्रांसमिशन, डेटा कम्युनिकेशन थ्रू जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, right, ना, can be a wired, can be a wireless. Is that clear? For data communication to occur, the communication devices must be a part of a communication system made up of the combining of hardware, it means the physical equipment, and the software, it means the program. Data communication के लिए, once you set a network, right, ना, you need to combine the two things. One is hardware and second is software. राइट. तो हार्डवेयर कहाँ पे, हार्डवेयर हम लोग को कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एंड सॉफ्टवेयर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन, राइट, टू स्टार्ट द कम्युनिकेशंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, राइट. सम फंडामेंटल characteristics, or you can say some particular points are used in a communications. Means we need to consider when you establish the communication, when you start the communication, कुछ terms जो है वो हम लोगों को by default देखने पर, okay, तो वो terms क्या है, right? Terms, it means what is the communication? The communication between two devices, right? Under the computer network, okay. So T devices, it means once performing the sender, okay, once performing the sending, performing the role as a sender, okay, and second is a receiver. First is sender and second is a receiver, right? So sender and receiver basically क्या करेगा, sender send करेगा अपना information, अपना data to the receiver, और receiver उसको क्या करेगा, received करेगा, राइट ना. तो सेंडर पे कुछ टर्म्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, राइट ना. जैसे हम लोगों को अगर कॉल लगाना है किसी को, एक एग्जांपल, कॉल अगर हम लोगों को किसी को लगाना है तो हम लोगों को सामने वाले का नंबर मालूम होना चाहिए, राइट. नंबर, इट मींस अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस, राइट. अगर हम लोगों को किसी को मेल करना है तो उसका ईमेल आईडी मालूम होना चाहिए, इट मींस एड्रेस. तो ऑब्वियसली सेंडर को रिसीवर का एड्रेस मालूम होना चाहिए टू डिलीवर देयर इंफॉर्मेशन, देयर डेटा, ओके. देन वो कौन से मोड में कैसे और कितने डेटा सेंड करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, राइट. वो डेटा कितने टाइम में, विद इन टाइम लिमिट में वहां पे पहुंचना चाहिए, देखना. दैट टाइम लिमिट इज कैलकुलेट फ्रॉम द डिस्टेंस, राइट. अगर हम लोग को सेंडर एंड रिसीवर के दोनों के बीच का अगर हम लोग को डिस्टेंस मालूम हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द टाइम. आवाज नाही येते, हेडफोन लावलाय. तमाम हेडफोन जरा चेक कर. अरे घरात थोडं बाळ आहे ना, त्यामुळे जरा त्याचा रडायचा आवाज येत असेल. ओके, आता येतोय. ठीक आहे. घरी जरा न्यू बॉर्न बेबी आहे, त्यामुळे ॲज युजल तुम्हाला माहित आहे ओके. Let me come to the point. The sender
लोकेशन चेंज करा लागणार लेक्चर घ्यायचं. Some terms are related to the sender, right? Now, precaution, you need to take precaution by sender. First is write accurate address. Second, the time, right? Timestamp. And third is the distance, right? डिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको टाइम देना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को ट्रैवल करना है भाईकला टू दादर, राइट राइट, अगर हम लोग यूजिंग ट्रेन अगर हम लोग करेंगे तो ट्रेन जो होती है वो 7 to 8 मिनट में वहां पे वंस यू गेट द ट्रेन ना, द ट्रेन takes 7 to 8 minutes to reach the Dadar station, right? So if you are taking if you use the train na, right, for the traveling, it will take 7 to 8 minutes to reach the Dadar station, right? If you use the vehicle, right, mode of 4-wheeler or 2-wheeler na, the 2-wheeler take less time than the 4-wheeler, right? So according to the traveling mode, right, we calculate the time. Okay, we calculate the time to deliver the particular information. So according to the communication, according to the network, right, sender have to write accurate informations, accurate address, accurate timestamp, right ना. तो ये सब चीजें सेंडर को कंसिडर करनी है, right? Similarly, once you get the information or data, right, receiver have to acknowledge at the same time. So that is very much important terms which is come under the data communications. See the technical terms. The first is delivery, rate, accuracy, timelines, and the jitter. Delivery, it means end-to-end delivery. It means accurate address. That terms is related to the accurate address. Okay, the system must deliver data to the correct destination. Data must be received by intended device or user and only by that device of or user. It means जो डेटा हम लोग सेंड करें वो राइट पर्सन के पास, राइट रिसीवर के पास ही, राइट एड्रेस के पास ही क्या होना चाहिए, डिलीवर्ड होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट, accuracy. The system must deliver the data accurately. Okay, the data that have been alert in a transmission and left uncorrected are unusable. It means most accuracy. जो डेटा आप लोग सपोज इफ यू सेंड 10 पैकेट्स तो 10 पैकेट्स ही डिलीवर्ड होने चाहिए, राइट है, और एक्यूरेटली डिलीवर्ड होने चाहिए, राइट. इट मींस अगर हम लोगों ने डेटा पैकेट्स को नंबरिंग दी है, टाइम स्टैम्प दिया होगा, तो उस सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू भी क्या होना चाहिए, डिलीवर्ड होने चाहिए. नाउ द टाइमलाइन इट मींस हर डेटा को, हर पैकेट्स को, डेटा पैकेट्स को टाइम असाइन किया जाता है. ओके, विदिन ड्यूरिंग दैट टाइम में ही वो डिलीवर होना चाहिए. इट इज नॉट डिलीवर्ड ड्यूरिंग द टाइम, इट विल डिस्कार्ड इट. ओके, सी लास्ट इज jitter. Jitter, it means it calculates the delay. It calculates the delay of packet arrival time. Okay, packet arrival time also consider, right, where at the receiver end, right ना, because अगर किसी ने ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर किसी ने डेटा पैकेट्स को मॉडिफाइड किया, उसका टाइम मॉडिफाइड किया, तो नहीं मालूम पड़ेगा ना रिसीवर को, राइट ना. तो ऑलवेज क्या करता है, कोई भी डेटा पैकेट जब सेंड करता है सेंडर ना, अलॉन्ग विद दैट डेटा पैकेट्स, वो क्या करेगा, उसके साथ एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. ओके, और जैसे व्हेन यू डिलीवर्ड द पर्टिकुलर पैकेट ना एट द रिसीवर एंड, at that same time receiver also send acknowledgement to the sender. Okay, पैकेट नंबर 2 6 मिनट में डिलीवर्ड हो गया, राइट है ना. तो एंड टू एंड कम्युनिकेशंस, राइट है ना, जरूरी है, वेरिफिकेशन जरूरी है.
अगर सेंडर ने तो पैकेट्स को 5 मिनट्स दिए हुए डिलीवर होने के लिए, एंड अगर वो 6 मिनट में डिलीवर्ड हो रहा है कहाँ पे, रिसीवर एंड में, तो इमीडिएटली वंस यू गेट दैट पैकेट ना, तो रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट कि विद इन 6 मिनट में पैकेट नंबर 2 डिलीवर्ड हो गया। तो सेंडर को मालूम पड़ता है कि उस पैकेट में गड़बड़ है। It will take 1 minute extra to reach the receiver, to the receiver, right? तो भी प्रॉब्लम क्या है, it immediately acknowledge to the receiver, it do not open this packet, discard that packet. Why? Because पैकेट में वायरस होने के चांसेस, मॉडिफिकेशन के चांसेस। तो वो सेम पैकेट क्या करेगा, उसको रीसेंड कर। सिमिलरली ड्यूरिंग दैट ट्रैवलिंग, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर एक आधा पैकेट लॉस हो गया तो रिसीवर एंड में हर एक पैकेट का कैलकुलेशंस किया, राइट? सपोज इट सेंड 1 2 3 4 अप टू 5 पैकेट्स टू द रिसीवर, तो रिसीवर एंड में अगर 1 2 4 पैकेट्स है, 3 पैकेट मिसिंग है, तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट जाता है कि वी रिसीव्ड 1 2 4 पैकेट्स। ओके, मींस मिसिंग पैकेट्स भी क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये कम्युनिकेशंस होना, एस्टैब्लिश करना, रेट डेटा कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? ओके, सी कंपोनेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। सी, अब तक हम लोग सेंडर रिसीवर बोलते हैं। सी, दिस इज द सेंडर, दिस इज द रिसीवर एंड दिस इज द ट्रांसमिशन, राइट ना? अगर आपको वार्ड लेना है तो वार्ड लो, वायरलेस लेना है तो वायरलेस लो, राइट? डिपेंड ऑन okay, and some rules regulations which is followed by sender and some rules regulation followed by receiver. Okay, see. What is message? Message is the information, it's a data to be communicated. Popular form of information includes text, number, picture, audio and video. ये 4 प्राइमरी मोड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, नंबर, और यू कैन से द टेक्स्ट। What is the sender? The sender is a device that sends the data message. It can be computer, it can be workstation, it can be telephone, handset, video camera, and so forth. Okay, another part is receiver. Who is receiver? The receiver is, okay, the receiver is a device that receives the message. Can be, as usual, computer, workstation, telephone, handset, and the television, and so on. The transmission media is a physical path by which message travels from the sender and receiver. It can be wired. वायर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक ट्विस्टेड पेयर वायर्स। ट्विस्टेड पेयर वायर्स इट मींस, ट्विस्टेड पेयर वायर्स हम लोग देखिए कभी आप लोगों ने ट्विस्टेड पेयर वायर कैसे होती है? एनी आइडिया अबाउट ट्विस्टेड पेयर? आफ्टर गेटिंग एडमिशन आपने कॉलेज में कभी लैब में विजिट किए? नहीं, आप लोग लॉकडाउन वाले हो ना, लॉकडाउन में एडमिशन, राइट? लॉकडाउन में एडमिशन हुआ। कॉलेज तो देखा है ना आप लोगों ने, कॉलेज की बिल्डिंग वगैरह। ओके, तो देखते कॉलेज स्टार्ट होगा ना, बट बेसिकली हाँ सिर्फ कैंपस देखा। अच्छा, कैंपस अच्छा है। ओके, तो बेसिकली हम लोग के घर में अगर वाईफाई है, वाईफाई डिवाइसेस है, राइट ना, राउटर अगर आपके घर में होगा तो उस राउटर को एक कनेक्टेड वायर रहेगी ग्रे कलर की। ओके, तो उस ग्रे कलर की वायर को, ओके, ट्विस्टेड पेयर वायर,
Okay, the twisted pair wire, it means the RJ45. That RJ45 wire basically used for the network communication, means for network as a transmission. Okay, तो दो बेटा मैं देखता हूँ. See, okay, so this is the RJ45. एक ग्रे कलर की वायर ऐसे वाली. See, this is the internal structure of that wire. वो हम लोग को नहीं देख रहे, जैसे आपको मालूम पड़े इसलिए मैंने बता. This is the RJ45. मोस्ट प्रोबेबली वो ग्रे कलर की होती है, राइट ना, क्योंकि बेसिक उसका ग्रे कलर ही है, राइट. तो दिस इज द RJ45. दिस इज RJ45. यही हम लोग के घर में अगर लोकल कनेक्शंस वगैरह हो तो उसमें हम लोग को विजिबल होती है. ओके, तो दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर. ओके, और बहुत पहले और एक वायर थी, दैट इज अ कोएक्सियल केबल, जो हम लोग टीवी केबल वाले जो यूज करते. ओके, टीवी केबल वाले यूज करते हैं, ब्लैक कलर की एकदम जाली वाली वायर. ओके, देखो ये इससे आपको मालूम पड़ेगा. सी, राइट ना, ये ऐसे कनेक्शंस होते थे पहले, जाली वाली वायर. ओके, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोएक्सियल केबल. सी, ओके, तो ये वाली वायर होती है ना, तो उसको कोएक्सियल केबल, बेसिकली दैट यूज फॉर केबल कनेक्शन, राइट ना. हार्ड कोर, सिंगल कोर होती है. ओके, फुल्ली प्रोटेक्टेड. जैसे ट्विस्टेड पेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पेयर्स होते हैं, इसमें ऐसे नहीं होते, तो सिंगल कोर वायर. ओके, तो ये भी हम लोग कम्युनिकेशन की यूज करते हैं. देन हम लोग का फास्ट एंड फाइबर ऑप्टिक. ये फाइबर ऑप्टिक केबल अगर आपको बेसिकली ये केबल्स हम लोग को रोड साइड में दिखेगी, फाइबर ऑप्टिक वायर, ठीक ना. उसका मैक्सिमम कलर ऑरेंज होता है, राइट. मैक्सिमम कलर ऑरेंज होता है. अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ऑरेंज कलर्स में. एंड ये दिस इज फाइबर ऑप्टिक केबल. दैट फाइबर ऑप्टिक केबल मेड अप ऑफ ग्लास कोर. ओके, ग्लास कोर नहीं, ये क्या होता है डिजाइन फाइबर. हे ऑरेंज कलर छोटे छोटे वायर याच्यामध्ये इन दॅट वायर मेटल यूज नहीं होता. ओके, ग्लास कोर यूज, राइट. इट इज वेरी कॉस्टली वायर, राइट, बट मोस्ट एक्यूरेट एंड फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है. अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ये करना है, इंटरनेट प्रोवाइड करना है, एक्सेस करना है, कम्युनिकेशन करना है, अगर हाई बैंडविड्थ, राइट ना, मैक्सिमम डेटा अगर आपको विद इन मिनिमम टाइम में अगर आपको सेंड एंड रिसीव करना, फिर ये करना है, यूज करना है, विद इन ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करना है, तो हम लोग को फाइबर ऑप्टिक वी आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक फॉर ट्रांसमिशन. तो these are the but the glass conduct ऐसा करता. No, that converted into signal. Okay, तो सिग्नल में मीन्स एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग जो ट्रांसमिशन है ना, उसमें थोड़ा बिफोर पार्ट जो है दैट इज अ कन्वर्जन. ओके, तो इट कन्वर्टेड सिग्नल्स, सॉरी, कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स. 10 वाजून 20 मिनिट. It converted into signals, and that signals, right na, then send it through that wire, right na. So obviously light signals जो होते हैं ना is more accurate and faster than the electrons. तो इसीलिए अगर हम लोग को
ज़्यादा कोई कंपनी रहेगी जिसमें अराउंड 10 to 50 ये सॉरी 10 नहीं, मोर देन 50 क्लाइंट्स अगर है किसी कंपनी में, तो दैट कंपनी रिक्वायर्ड हाई बैंडविड्थ इंटरनेट, राइट? तो दैट टाइम दे यूज केबल फाइबर ऑप्टिक. ओके, आपण जे यूज करतो, हम लोग जे यूज करते, राइट ना, दैट इज वेरी बेसिक लेवल ऑफ आवर्स. ट्विस्टेड पेड इज वेरी बेसिक वाई, राइट ना, क्योंकि हम लोग का मैक्सिमम हम लोग का जो स्पीड होता है इंटरनेट का वो एमबीपीएस में. ओके, अगर आपको जीबीपीएस में उसका स्पीड की रिक्वायरमेंट है, राइट ना, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, they are using fiber optic basically small नेटवर्क के लिए यूज नहीं होता, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है, स्मॉल एरियाज में नहीं यूज होता. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करना है, राइट ना, हेवी डेटा ट्रांसफर करना है, राइट, दैट वी आर यूजिंग बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस, राइट ना. फाइबर ऑप्टिक को ट्विस्ट करके नहीं चलता है, राइट ना, वो बहुत सिक्योरली और सेफली हम लोग को इंस्टॉल करनी पड़ती है. और इंस्टॉलेशन एज यूजुअल उसमें थोड़ा सा कन्वर्जन है, राइट है ना, तो इट इज क्वाइट कॉस्टली दैन द नॉर्मल. तो हम लोग ईच एंड एवरी टर्म्स डिटेल्स में डिस्कस करें, जितना पॉसिबल है मैं आपको इमेज दिखा के आपको बताऊँ. ओके, फिर द प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न data communications, that control the data communications. Which obviously some rules regulation होना जरूरी है हर एक चीज में. Okay, so that communication we are using, so protocol we are using for the communication, right? So another term is data representation. As we know, the data is represented in the form of text, image, audio, and the video. Okay, so this is the basic terms. See, data flow, single directions. Mainframe, it means a server. Okay, but data will flow in these three formats: simplex, half duplex, and full duplex. See, okay, this is single direction. Okay, this is the client and this is the server. Okay, तो अगर सिर्फ हम लोग को इनपुट ही मिलता है, राइट ना, फ्रॉम द सर्वर, दिस कॉल्ड सिंगल डायरेक्शन, सिंप्लेक्स डेटा. ओके, दिस इज द हाफ डुप्लेक्स. ओके, हाफ यहाँ से अगर कुछ सेंड करता है तो आफ्टर रिसीविंग इंफॉर्मेशन यहाँ से उसको क्या करेगा, एक्नॉलेज दिया जाएगा, राइट. फुल डिफ्लेक्शन मींस डायरेक्ट बोथ पे करना, राइट है ना. जरूरी नहीं है कि सिंगल मोड कम्युनिकेशन है, राइट ना. एक बार यहाँ से आने के बाद यहाँ से फिर जैसे हम लोग ना, हम लोग गली में या फिर हम लोग के आसपास अगर 2 व्हीकल्स दोनों साइड अगर पार्किंग हो तो 2 व्हीकल्स अगर एक दूसरे को पास करें ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सामने वाले को बोलते भाई तू आ जा, राइट ना, ने फिर हम लोग वहाँ से पास होते हैं. ऐसे नॉर्मली मैं करता हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तू रुक, मेरे से जाने दो फिर तुम पास हो. ओके, तो नॉर्मली नैरो जो लिंक होती है, नैरो जो ट्रांसमिशन होता है, उसमें ये हाफ डुप्लेक्स होता है. दिस इज द फुल डुप्लेक्स मींस जरूरी नहीं है, 2 वे कम्युनिकेशन, दोनों साइड से क्या होता है कम्युनिकेशन. ओके, तो नाउ वी स्टॉप हियर. बाकी के जो टर्म्स हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. थैंक यू.